اور جب یہ اس مکاشفے سے خدا کی ذات کو جان لیتی ہے تو اسماعیل کی ماں ہاجرہ اس کا نام رکھتی ہے عطا اے روئے. وہ خدا جو دوسروں کا نام رکھ رہا تھا اس نے اس کا نام رکھا. کلیسیا نے بھی اس مکاشفے کے سبب سے، اس تعلیم کے سبب سے جو ہاجرہ کی طرح ایک داستان ایک واقعے میں چھپا نہیں بلکہ پیدائش سے لے کے مکاشفے تک ہے، خدا کا نام خدا الثالوث رکھا ہے. آج کا کیا مطلب ہے؟ ون، نومیریکلی ون. آج کا مطلب ہے یکتا، یونیک، جس سے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو. تو ہم خدا کو نومیریکلی کاؤنٹ نہیں کرتے، ہم خدا کو اس صورت میں ایک مانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی روح ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری روح دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. اور 7ویں آیت سے لے کے اس کی 13ویں آیت تک خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور وہ خداوند کے فرشتے کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی. یہ وہی چشمہ ہے جو شوق کی راہ پر ہے. اور اس نے کہا، اے سارائی کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سارائی کے پاس سے بھاگ آئی ہوں. خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر دے. اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا. اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا، تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا. وہ گوہر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطا اے روئے نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے. کیونکہ اس نے کہا، کیا میں نے بھی یہاں اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہے. آج ہم مسیحی ایمان کے ایک بڑے بھید یعنی پاک تثلیث کے اوپر غور کریں گے. یہ مسیحی ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ خدائے واحد جو ہے وہ ازل سے ہی 3 اقنوم میں جو ہے وہ موجود ہے. کچھ ہیں تو بھی 3 نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے. 3 نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے. اور یہی مسیحی ایمان کا جزو لازم ہے کہ تینوں ازلی ہیں، تینوں ابدی ہیں، تینوں جو ہیں وہ حشمت میں، قدرت میں، طاقت میں، بزرگی میں برابر ہیں. کوئی بھی ایک سے چھوٹا نہیں ہے اور کوئی بھی دوسروں سے بڑا نہیں ہے، بلکہ تینوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. تینوں کی برابر عزت اور تعظیم کرنی چاہیے. جب ہم تثلیث کی بات کرتے ہیں، جب ہم خدا کے وجود کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ابدی خدا جو ہے وہ ازل سے ہی 3 اقانیم میں کیا ہے؟ موجود ہے. 3 اقانیم میں کیا ہے؟ موجود ہے. اہل اسلام کا مسیحیوں کے اوپر یہ بڑا اعتراض ہے کہ انہوں نے تثلیث کو انوینٹ کیا ہے نقایا کی کونسل کے ٹائم میں، اور لفظ تثلیث جو ہے
یہ بائبل میں پایا نہیں جاتا. یہ بالکل ٹرو ہے. لفظ تثلیث کتاب مقدس میں موجود نہیں ہے، تو بھی جو تثلیث ہے اس کی تعلیم ہمیں کتاب مقدس میں پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک ہمیں ملتی ہے. اور کلیسیا اسی تعلیم کو جو پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک بکھری ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ ایک لفظ میں ایک نام میں سمو دیا ہے، اور وہ تثلیث ہے. وہ خدا کی اس ذات کے لیے جو ایک میں تین اور تین میں ایک ہے، خدائے ثالوث کا نام دیتے ہیں. اگرچہ خدائے ثالوث پاک تثلیث کتاب مقدس میں موجود نہیں ہے، تو بھی یہ نام، یہ عقیدہ حقیقت کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے. اور اسی کو ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ انہیں باپ، بیٹے اور روح کے نام میں کیا دینا؟ بپتسمہ دینا. کیوں کہ باپ، بیٹا اور روح جو ہے وہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، اور تینوں برابر ہیں، اور تینوں کا نام جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، سب ناموں سے اعلیٰ القا ہے، اور وہ نام یہوہ ہے. وہ نام کیا ہے؟ یہوہ ہے. سو باپ یہوہ ہے، بیٹا یہوہ ہے، اور روح یہوہ کا روح ہے. اسی لیے باپ، بیٹے اور روح کا نام کیا ہے؟ یہوہ ہے. اور انہیں باپ، بیٹے اور روح کے نام میں بپتسمہ دینا، کیونکہ یہودی خدا کے لیے اس کا نام، ذاتی نام اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے. وہ اس کے لیے لفظ نام ہاشم استعمال کرتے تھے. کیا استعمال کرتے تھے؟ ہاشم استعمال کرتے تھے. ہاشم کا مطلب ہے the name، اور the name جو ہے اس کا مطلب ہے یہوہ. اور یہوہ جو ہے وہ باپ، بیٹے اور روح کا نام ہے. تثلیث کی تعلیم اور خدائے ثالوث کے بارے میں علم جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے، اور آج اسے ہم نے دوسری تلاوت میں سنا ہے کہ ہاجرہ اسماعیل کی ماں، وہ لونڈی جو انہیں مصر سے ملی تھی، جب یہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور یہ اپنے سٹیٹس کو بھول جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جب یہ اپنی مالکن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو سارائی جو اس کی مالکن ہے اور جس کی یہ لونڈی ہے، وہ اس پر جو ہے وہ سختی کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ اس کے حضور سے بھاگ جاتی ہے، مفرور ہو جاتی ہے. جب یہ بھاگتی ہے تو یہ خداوند کے فرشتے کو بیابان میں شور کے چشمے کے پاس ملتی ہے، اور شور کے چشمے پہ خداوند کا فرشتہ ملک یہوہ، میسنجر آف دا لارڈ، یہوہ کا پیغمبر اسے ملتا ہے. اور یہوہ کا پیغمبر، یہوہ کا میسنجر جو ہے وہ اس سے باتیں کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے سرائی کی لونڈی ہاجرہ، اور تو کہاں سے آئی، کدھر جاتی ہے. وہ اسے بنام جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مفرور ہوئی ہے. اب وہ اس سے پوچھتا ہے تو کہاں سے آتی، کہاں کو جاتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی مالکن کے حضور سے بھاگ آئی ہے. خداوند کا فرشتہ یعنی ملک یہوہ کا میسنجر جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا، میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا. وہ جانتا تھا کہ یہ حاملہ ہے، میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، اور یہ
यहोवा का जो मैसेंजर है, जिसे मलक यहोवा खुदावंद का फरिश्ता कहा गया है, ये यीशु मसीह का तजस्सुम से पहले ज़बूर है, जिसमें वो खुदा के तौर पर मुखातिब होता है, क्योंकि वो खुदा है। वो क्या है? खुदा है। और वो उसे कहता है कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, तू हामिला है, तेरे बेटा होगा। वो उसके अंदर की बातें भी जानता था, उसके बाहर की बातें भी जानता था। अगर आप पिसे हुए हैं, आप जो हैं वो डिप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपको अंदर और बाहर से जानता है। खुदावंद आपके हालात और वाक़ियात से वाकिफ है। खुदावंद इन तमाम हालात और वाक़ियात में आपके साथ खड़ा है। उसने फरमाया है, दुनिया क्या है तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। तो खुदावंद इस ऑप्रेस्ड और डिप्रेस्ड लौंडी से मुखातिब होता है, बताता है मैं तुझे गुनाम जानता हूं, मैं तेरे स्टेटस को जानता हूं, मैं तेरी हालतों से वाकिफ हूं, मैं तेरे अंदर की बात को भी जानता हूं कि तू हामिला है, और मैं ये बताता हूं कि बेटा होगा। क्या होगा? बेटा होगा। और फिर कहता है उसका नाम इस्माइल रखना। इसका मतलब है खुदा ने सुन लिया, खुदा ने सुन लिया उसकी फरियाद को, जो आंसुओं के साथ थी, जो रिजेक्शन की वजह से थी, ऑपरेशन की वजह से। कहता है वो गोहर की तरह आजाद मर्द होगा, गोहर की तरह आजाद मर्द, खाना बदोश होगा, और अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और 13 वर्ष में हाजरा क्या कहती है? लिखा है, हाजरा ने खुदावंद का यानी यहोवा का, जिसने उससे बातें की, यानी हाजरा को ये पता है कि मलक यहोवा दरअसल यहोवा है। ये यहोवा का जो फरिश्ता है, ये ज़हूर में तो फरिश्ता है, जात में फरिश्ता नहीं है, जात में खुदा है। जात में क्या है? खुदा है। लेकिन अकनूम अव्वल से अलहदा शख्स, दूसरा अकनूम यीशु मसीह का तजस्सुम से पहले ज़हूर, जहां पर वो यहोवा के मैसेंजर के तौर पर जाहिर हुआ है, जिसे नए नामे में लोगोस कहा गया है। खुदा का कलमा, खुदा का कलाम, खुदा का कलमा, खुदा का कलाम। खुदा इसके वसीले से दुनिया से मुखातिब होता है। और हाजरा उसे यहोवा कहती है, और कहती है, हाजरा ने खुदावंद का, जिसने उससे ये बातें की, अता एल रोए नाम रखा। यानी ए खुदा तू बसीर है, ए खुदा तू देखता है, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। ना मेरे अंदर की बात छुपी है, ना मेरे बाहर की बात छुपी है, ना मेरा माजी तुझसे छुपा है, ना मेरा हाल तुझसे छुपा है। तू सब कुछ पूरे तौर पर जानता है, तुझे हाल का, मौजूदा का और आइंदा का पूरा पूरा पता है। तुझसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। और वो खुदा का नाम रखती है। क्या रखती है? खुदा का नाम रखती है। नाम क्या रखती है? अता एल रोए, यानी है खुदा तू बसीर है। किताब मुकद्दस में ये पहली औरत है जिसने खुदा का नाम रखा, और इसका खुदा का नाम रखना उस मुकाशफे के सबब से था जो शोर के बियाबान में, शोर के चश्मे के ऊपर इस पर होता है। और जब ये उस मुकाशफे से खुदा की जात को जान लेती है, तो इस्माइल की मां हाजरा उसका नाम रखती है अता एल रोए। एक वक्त के मुकाशफे ने उसे ये शर्फ बख्शा कि उसने खुदा का नाम रखा। वो खुदा जो दूसरों का नाम रख रहा था, उसने उसका नाम रखा। कलीसिया ने भी उस मुकाशफे के सबब से
उस तालीम के सबब से जो हाजरा की तरह एक दास्तान एक वाक्य में छिपा नहीं बल्कि पैदाइश से लेके मुकाशफे तक है, खुदा का नाम खुदा सलूस रखा है, इस पर भी एतराज किया जा नहीं सकता। अगर हाजरा की जात पर एतराज नहीं है तो कलीसिया के ऊपर जो खुदा का बदन है उसके ऊपर भी एतराज किया जा नहीं सकता कि ये नाम जो है ये तो कलीसिया ने दिया है, पाक तस्लीस खुदाए सलूस सलूस अक़दस, ये नाम सच्चाई के मुकाशफे पे जो है वो मबनी है, इसलिए ये स्टैंड करता है, इसलिए ये क्या करता है, स्टैंड करता है। अगर हाजरा एक वक्ती मुकाशफे से खुदा का नाम रख सकती है जो कि हकीकत पे मबनी है, तो कलीसिया ने भी उस मुकाशफे के सबब से जो एक वक्त पे नहीं हजारों साल से जाहिर होता रहा है उसका नाम पाक तस्लीस सलूसे पाक सलूसे अक़दस रखा है। और ये क्या है, वैलिड है, ये क्या है, वैलिड है, क्योंकि ये कलाम की सच्चाई पर क्या है, मबनी है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में हमें मलक यहोवा खुदावंद के फरिश्ते का ज़बूर मिलता है जो खुदा से क्या है, यानी बाप से अलग शख्स है, अलग क्या है, अकनूमियत में, खुदा की वजूद में वो सब क्या है, एक जैसे और मौजूद हैं, अलग अलग वजूद नहीं रखते। तो ये जहां पर जाता है वहां पर इसकी ताज़ीम होती है, इसे सिजदे होते हैं, इसकी कुर्बानियां की जाती है इसके हुजूर में, ये कुर्बानियों को मंजूर करता है, ये कुर्बानियों को क्या करता है, मंजूर करता है, कबूल करता है, ये कुर्बानियों को तलब करता है। जैसे कि हम शमसून के वालिदैन के माजरे में देखते हैं, ये कुर्बानी को तलब करता है। जैसे हम जिदाउन काजी के जमाने में देखते हैं, ये कुर्बानी को कबूल करता है। ये जिस जगह आ खड़ा होता है वो जगह पाक हो जाती है, झाड़ी में आता है वो जगह पाक हो जाती है, यशुआ के पास आता है वो जगह पाक हो जाती है। अपनी जूती को उतार दे, क्यों? क्योंकि ये खुदाई सदूस का दूसरा कानून अपनी जात में खुदा और यहोवा है, जो यीशु मसीह का तजस्सुम से पहले क्या है, ज़हूर है। यीशु मसीह का तजस्सुम से पहले क्या है, ज़हूर है। और खुदा यानी खुदाई सदूस पुराने अहदनामे में ही हमें नजर आता है काम करता हुआ। ये नहीं कि ये फकत नए अहदनामे में जाहिर हुआ, नए अहदनामे में वाज़ेह हो गया, नए अहदनामे में क्या हो गया, वाज़ेह हो गया। पुराने अहदनामे में जो था वो एक शफक की तरह था, पुराने अहदनामे में क्या था, एक शफक की तरह था। नए अहदनामे में मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गया। और इसे हम देख सकते हैं यशायाह की किताब उसका 48वां बाब, बहुत सारे हवाले हैं लेकिन कुछ मैंने जुबानी जो है वो बोल दिए हैं, कुछ हवाले जो है वो मैं बयान करूंगा। 48 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, आई याकूब मेरी सुन, और इस्राएल जो मेरा बुलाया हुआ है, मैं वही हूं, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। ये वही अव्वल है, ये वही आखिर है, जिसने फरमाया है वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तदा और वो इंतहा है। अब वो जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो इब्तदा है, जो इंतहा है, वो फरमाता है कि मैं ही अव्वल, मैं ही आखिर हूं, यकीनन मेरे ही हाथ में जमीन की बुनियाद डाली, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। यकीनन मेरे ही हाथ ने जमीन की बुनियाद डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फैलाया, आसमान की हो या जमीन की। और फिर ये फरमाता है आगे जाके 16वीं आयत में, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, अल्फा
ओमेगा, इब्तदा, इंतहा, अव्वल और आखिर फरमाता है जो दुनिया का खालिक और मालिक है कि उसने शुरू से पोशीदगी में कलाम नहीं किया। जिस वक्त से कि वो था मैं वही था। कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। वो अज़ल से खुदा के साथ है और वो खुदा भी है, यानी एक खुदा में तीन शख्स। एक खुदा में कितने शख्स हैं? तीन शख्स हैं। अब देखिए, अब खुदावन खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। कलाम खुदा अव्वल आखिर क्या कहता है? अब खुदावन खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे क्या किया है? भेजा है। तो यहां पर हमें खुदाए सलूस मिलता है, जिसे किसने भेजा है? खुदावन खुदा ने और उसकी रूह ने। और ये अज़ल से ही खुदा का प्रोग्राम था कि बाप भेजेगा, बेटा जो है वो रूह के वसीले से भेजा जाएगा और नजात का क्या करेगा? काम करेगा। इसीलिए बपतिस्मे के टाइम में हमें ये बात पूरी होती नजर आती है, जहां पर आसमान से कबूतर रूह की शक्ल में उस पर उतरता है, आसमान से आवाज आती है जमीन वाले के लिए, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये वो वक्त था जब उसके मिनिस्ट्री के लिए भेजा गया। किसके लिए भेजा गया? अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको क्या किया है? भेजा है। तो यहां पर खुदाए सलूस का वजूद मिलता है। खुदाए सलूस का क्या मिलता है? वजूद मिलता है। और फिर हम इसे यसाया की किताब उसके 63 बाब में भी देखते हैं, 63 चैप्टर में। यहां पर लिखा है, यसाया चैप्टर 63 वर्स 8 to 10 लिखा है, क्योंकि उसने फरमाया यकीनन वो मेरे ही लोग हैं, ऐसी औलाद जो बेवफाई ना करेगी, चुनांचे वो उनका बचाने वाला हुआ और उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ और उसके हुजूर के फरिश्ते ने, ये वही है मलक यहोवा। कौन? मलक यहोवा। उसके हुजूर के फरिश्ते ने उनको बचाया और उसने अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दिया। मैं जानता हूं कि मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। कौन? यीशु मसीह जिंदा कुर्बानी है। मैं जानता हूं कि मेरा, अय्यूब कहता है, फिदिया देने वाला जिंदा है। और यहां पर खुदा फिदिया दे के, कीमत दे के अपने लोगों को छुड़ाता है अपनी रहमत से। उसने उनको उठाया, कदीम से हमेशा के लिए उनको लिए फिरा, लेकिन वो बागी हुए। उन्होंने उसकी रूह कदूस को गमगीन किया। यहां पर बाप भी है, यहां पर उसके हुजूर का फरिश्ता, द वर्ड ऑफ द गॉड भी है, यानी खुदा का कलमा भी है जो डिवाइन मैसेंजर है, और यहां पर खुदा का रूह भी है। शुरू से ही हमें तसलीस मिलती है। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। जमीन वीरान सुनसान थी, गहराव के ऊपर अंधेरा था। खुदा की रूह पानी की सतहों पर क्या करती थी? झुंबश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और कल मैंने बेटे ने क्या कर दी? रोशनी कर दी, क्योंकि वो हकीकी नूर है। नूर में से नूर, खुदा में से खुदा है। नूर में से नूर और खुदा में से खुदा है। तसलीस ऐसी नहीं जो बात किए जा रहे हैं, इसकी जड़ें कदीम से, जब से इंसान को खुदा का मुकाशफा हुआ है तभी से मौजूद है। तभी से क्या है? मौजूद है। इसलिए हमारा यकीन खुदाए सलूस पर है, और वो खुदाए सलूस खुदाए वाहिद भी है। खुदावन हमारा यहोवा एक ही खुदा है, चाहे एक ही खुदा है। हम खुदाए वाहिद पर यकीन रखते हैं, हम तीन खुदाओं पर यकीन नहीं रखते, यह बिदअत है। बल्कि हम एक खुदा पर यकीन रखते हैं जो हमेशा से तीन अकनूम में मौजूद है, हमेशा से तीन अकनूम में मौजूद है। हम हरगिज़ इस बात पर भी यकीन नहीं रखते कि एक ही था जो
पुराने हदामे में यहोवा था, बाप था, नए हदामे में बेटा बन गया और ऊपर गया तो रूह बनकर आ गया। हम ऐसी मिसालों को भी रद्द करते हैं जो मॉडर्निज्म को प्रमोट करती हैं। एक बिदअत है कि ये बर्फ, पानी और बादल या गैस की तरह है, क्योंकि इन तीनों में बुनियादी अंसर एक ही है, H2O। तो ऐसे नजरियात जो हैं वो बिदात को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। पाप इनफरादी तौर पर पाप है, बेटा जो है वो इनफरादी तौर पर जो है वो बेटा है, और रूहुल कुदस जो है वो ना तो बाप है ना बेटा, बल्कि वो इनफरादी तौर पर क्या है? रूह है, और तीनों जैसा कोई भी नहीं, हत्ता कि तीनों भी एक जैसे या एक ही नहीं है, लेकिन उनका खुदा होना जो है वो क्या है? एक है। एक जो है इसका ताल्लुक इस बात से नहीं कि हम इसे न्यूमेरिकली काउंट करें, हत्ता कि अहले इस्लाम में भी खुदा के लिए लफ्ज वाहिद नहीं है, आहद है। वाहिद का मतलब है कि एक, वन। वाहिद का क्या मतलब है? वन, न्यूमेरिकली वन, न्यूमेरिकली वन। आहद का मतलब है यकता, यूनिक, जिससे जैसा कोई दूसरा ना हो। तो हम खुदा को न्यूमेरिकली काउंट नहीं करते, हम खुदा को इस सूरत में एक मानते हैं कि वो एक ऐसी रूह है कि उस जैसी कोई दूसरी रूह दुनिया में मौजूद ही नहीं है, और उस एक रूह में 3 पर्सन जो हैं वो रहते हैं, यानी बाप, बेटा और रूह कुद्स। तो खुदा को आप काउंट नहीं कर सकते। जो शुमार में आ जाए वो भी खुदा है, जिसे काउंट किया जा सके, क्या वो भी खुदा होगा? खुदा तो वो है जो काउंटलेस हो, जो शुमार में ना आए। जो शुमार में आ जाए वो खुदा नहीं है, कम से कम हमारा नहीं है। तो एक होना यह है कि वो अपने जैसा एक ही है, अपने जैसा एक ही है, और उस जैसा कोई दूसरा मौजूद नहीं है। और एक में 3 और 3 में एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन है। तो भी एटम जो है वो क्या है? एक है। तो भी एटम जो है वो क्या है? एक है। हम एक लिविंग बीइंग हैं, और हमारे अंदर जो है वो मिलियंस जिंदा सेल्स हैं। मिलियन जिंदा सेल्स ने मिलकर हमें बनाया है। तो भी हमारा इंसान होना क्या है? एक ही है। वो भी हमारा इंसान होना क्या है? एक है। तो जब यीशु मसीह ने ये कहा उन्हें बाप, बेटे और रूह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, तो इसका मतलब है कि निजात फकत एक कानून का काम नहीं है। खुदा के निजात के मंसूबे में बाप भी शामिल है, बेटा भी शामिल है और रूह भी शामिल है। इसीलिए जब हम बाप, बेटे और रूह में बपतिस्मा देते हैं तो इसका मतलब है कि निजात जो है वो एक कानून का काम नहीं है। जहां पर एक कानून तो निजात के लिए शामिल हुआ, बाकी जो है वो फारिग होके बैठ के नहीं। खुदा का पूरा वजूद जो है वो हमारी रहाई और निजात के कफारे के काम में क्या था? शरीक। कफारे के काम में क्या था? तो बपतिस्मा, इसे हमें समझना चाहिए। क्यों कहा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में? क्योंकि निजात बाप के वसीले से है, निजात बेटे के वसीले से है, और निजात रूह के वसीले से है। और ये सारा मखलसी और रहाई का काम जो है ये खुदाए सदूस का है। किसका है? खुदाए सदूस का है। और इसकी ताईद जो है वो हमें मिलती है इब्रानियों के खत में, उसका नामा बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तो मसीह का खून, किसका खून? मसीह का खून, जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीले से, किसके वसीले से? अजली रूह के वसीले से खुदा के सामने, बाप के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया।
तो नजात एक अकनूम का काम नहीं, सलीब पर तीनों अकनूम जो है वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बेटा कुर्बानी दे रहा है, रूह कुद्स के वसीले से कुर्बानी चढ़ाई जा रही है, और खुदा बाप जो है उसे क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। खुदा यीशु को छोड़ के भागा नहीं था, वो शामिल है, उसका पूरे का पूरा वजूद वहां पर मौजूद है। कोई खुदा यीशु को छोड़कर भागा नहीं था, वो तो कुर्बानी को रिसीव कर रहा था। कुर्बानी जो है वो बेऐब चढ़ाई गई और रूह कुद्स के वसीले से चढ़ाई गई। चुनाचे आपकी निजात, आपकी रहाई जो सलीब के वसीले से हुई है, वहां पर नजर तो एक आ रहा है, काम तीनों कर रहे हैं। काम जो है वो कौन कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं। तो ये खुदा के कलाम की जो है वो तालीम है कि खुदा जो है वो एक है, और एक खुदा में हमें तीन बराबर के शख्स जो है वो क्या आते हैं, नजर आते हैं, जिनमें से कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है, और कोई भी अकेला काम नहीं करता। तहलीक के वक्त में भी तीनों क्या थे, मौजूद थे। कफारे के वक्त में भी तीनों क्या थे, मौजूद थे। और जब रूहुल कुद्स की ब्लेसिंग आई तो भी तीनों मौजूद थे। यीशु ने कहा था वो और बाप आएंगे और हमारे साथ क्या करेंगे, सुकूनत करेंगे। अब बाप और बेटा रूह कुद्स के वसीले से हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि एक दूसरे से जुदा इनका वजूद नहीं है। जहां पर बाप है वहां पर बेटा और रूह भी है, जहां पर रूह है वहां पर बेटा और बाप भी है। अतः कि यीशु मसीह कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। बाप में हूँ। इसीलिए कलीसिया ने कहा कि बाप और बेटे और रूह की अकनूमियत जुदा, लेकिन उनकी अलूहियत क्या है, एक है। और एक ही इलाही जोहर को, डिवाइन एसेंस को तीनों बराबर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। बराबर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसीलिए एक जो है वो बाकी दो में, दो जो है बाकी एक में, यानी तीनों एक दूसरे में मौजूद हैं, और एक दूसरे से जुदा इनका वजूद ही नहीं है। और इसे हम जो है वो देखते हैं जब रूह कुद्स हमारी जिंदगियों में आता है, और बाप और बेटा रूह के वसीले से, जिसने फरमाया था मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, रूह के वसीले से वो हमारे पास आ गया है। जैसे बेटा बाप में, बाप बेटे में, वैसे ये दोनों किसमें हैं, रूह में हैं। और मैं बस दो मजीद हवाले जो है ये बयान करूंगा, और ये ज़रूरी भी है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी चौथी आयत से उसकी 6ठी आयत में लिखा है, नेमते तो तरह तरह की, नेमते तो तरह तरह की, यानी स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है वो तरह तरह के हैं, मगर रूह एक ही है। रूह क्या है, एक ही है। खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद यानी यीशु कौन है, एक ही है। और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है। आमीन। तो यहां पर भी हमें खुदा सलूस मिलता है, नेमतों में, खिदमतों में, तासीरों में जो खुदा ने अपने चर्च के अंदर रखी हैं, उनमें हमें खुदाई सलूस मिलता है, उनमें हमें खुदाई सलूस मिलता है। टीम वर्क है इनका। ये हमें बताता है कि हमने एज ए वन टीम के काम करना है। हमने जब एक काम करें तो बाकी उसमें शरीक हो जाएं, जैसे खुदा का एक अकनूम काम करे तो बाकी जो है ला ताल्लुक नहीं हो जाते। तीनों अपने अपने जब काम करते हैं तो मिलकर करते हैं। सो सलूस अक़दस हमें यह बताता है कि खुदा के एक वजूद में तीन शख्स हैं, और वो टीम वर्क की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। और वो कलीसिया से खुदाए सलूस यही चाहता है कि हम टीम वर्क करें फॉर द ग्लोरी ऑफ द गॉड, खुदा के जलाल के लिए, ना कि अपने जलाल, अपनी नुमाइश, अपनी सिताइश के लिए, बल्कि किसके लिए,
خدا کے جلال کے لیے. اور یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا وجود ازل سے ہی ایسا ہے, یونٹی میں کیا ہے, ڈائیورسٹی ہے, اور یہ کبھی بھی تقسیم ہوتی نہیں ہے. یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ روح کی یگانگی ہمیشہ صلح کے بند سے بندی ہوئی ہے, ہمیشہ صلح کے بند سے بندی رہے, ہمیشہ. ٹیم ورک میں جب ہم کام کرتے ہیں, جب ہم یونٹی میں ڈائیورسٹی کی خوبصورتی کو دکھاتے ہیں, تو اس میں ہم خدائے ثالوث کا اظہار کرتے ہیں, جو ایک بھی ہے اور تین بھی ہے, جو ایک بھی ہے اور کیا ہے, تین بھی ہے. اس لیے ہمیں جو ہے وہ جو بلائے ہوئے اپنے بلائے جانے سے امید بھی یہی رکھنی چاہیے. آخری حوالہ پڑھوں گا, اس کے بعد میں اسے کلوز کروں گا. اور یہ آخری حوالہ جو ہے یہ 2 کرنتھیوں اس کا جو ہے وہ 13واں باب ہے, اور اس کی 14ویں آیت ہے کہ رسول کیسے اپنی کلیسیا کو برکت دیتے ہیں. لکھا ہے, خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت, خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا کی یعنی باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے. وہ برکت بھی دیتے تھے تو کس سے, خدائے ثالوث کے نام سے, یعنی باپ, بیٹے اور روح کے نام سے. وہ بپتسمہ بھی دیتے تھے تو کس سے, باپ, بیٹے اور روح کے نام سے. اور ان میں جو ظہور خدا کا ہوا تھا وہ بھی کس میں, باپ, بیٹے اور روح میں. نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں, خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں, اور کیا ہے, تصویریں بھی طرح طرح کی ہے, لیکن روح, باپ اور خدا کیا ہیں, ایک ہے.